Hello students of Standard 10. We are learning about, we are studying social science, and we had seen chapter number 2 about a traditional handicraft and fine arts, in which up to metal work we had seen. Then after the same, we will see about wooden art. Wooden art में what there people were using, people were using wood generally in the beginning as a firewood, and then after they prepared weapons, they made weapons. Also they used wood for building constructions, construction of the buildings, and for other construction work. Wood had been used by the people. People used wood for making idols, for making toys for the children, wooden pillars of the buildings, windows, doors, huts, uh, top of the terrace, thrones, chairs, grills, all were made up of wood. And not only they were preparing, giving the shapes of you from the wood, but they also were doing carving. Wood carving had been developed at that time. Swings, toys of Idar, etc. Of Sankara district. Now, this very famous. Then comes inlay work. It is considered as an ancient art of India. Kings, emperors, rulers, royal people, they were using ornaments as necklace, bracelet, crown, ring, nose ring, damani, in which they were using, in which gems like diamond, pearls, rubies were studied. So artisans were experts in doing this inlay work, and Bikaner is very famous. Then comes, then Akik work is also famous. Akik, it is a precious, one kind of precious stone. It is mixed with a silica. Chalcedonic is mixed with a silica, blue or a white stone, and carnelian is made stone, is main stone with a semi-transparent quality and beautiful red in color. So these very precious stones are available in big and small size in Ranpur and Surat. People were using these stones to mold it into various beautiful ornaments with various designs, and garments of stone, garland of stones and beads were also prepared. Okay, now we will see about painting. Painting is an art. It is art um, which has been found in Harappan during Harappan civilization, which is 5,000 years old. We can see the traces of pictures, animals, birds in the cave. During the Stone Age, we see one in Madhya Pradesh, Bhimbedka. This was at the time of Stone Age. We can see a cave painting of a primitive man. They also made designs and sketches of people. Now, people were using geometrical designs and sketches. Elephant, rhinoceros, deer. These the pictures of these they had been prepared. They were preparing. Ajanta Ellora caves are the specimens of such type of paintings. Besides this, we can see the sketches of the swastik, pitcher, Ganesha, etc. Celebration of these different festivals. This also shows the tradition of India at that time, and about rangoli making and everything we can see.
Then comes fine arts. Entertainment with a moral education has been imparted since ancient times through dramas based on the greatest scriptures like रामायण महाभारत. तो ये जो दो है एपिक्स, तो उसमें जितने भी स्टोरीज आती है तो उसके ड्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन करते थे लोग, और हमारा जो इसके बारे में इंफॉर्मेशन लोगों को पहुंचाते थे थ्रू ड्रामास एंड डांस. तो म्यूज़िक की बात कर लेते हैं. म्यूज़िक में क्या क्या होता है? ट्यून होता है, रिदम होता है, हारमोनी होती है. तो हमारे 4 जो वेदा है उसमें जो साम वेद है, आउट ऑफ द 4 वेदास, तो इज एसोसिएटेड विथ म्यूज़िक. उसके अंदर जो ऋचाज आती है, इट इज़ ऋचाज आर संग विथ अ ट्यून एंड रिदम ऑफ म्यूज़िक. तो म्यूज़िक में बताइए आपको कि द व्हेन music involves both singing and playing. The sa re ga ma pa dha ni. These are the 7 vowels of the music, and using this, they were composing the music. तो म्यूज़िक पे 2 टाइप की है, तो क्लासिकल म्यूज़िक है और फोक म्यूज़िक. रागास भी है, 5 मेन रागास आते हैं क्लासिकल: श्री, दीपक, हिंडोल, Meg and Bhairavi. These are the 5 main ragas, and then the others are also had been developed from these 5 ragas. ये वैसा बताते हैं कि लॉर्ड शिवा के मुख में से ये निकले थे. उन्होंने ये पंचमुख ऑफ लॉर्ड शिवा, उसमें से केम आउट दिस रागास. और बाद में संगीत मकरंद, संगीत रत्नाकर, संगीत परिजीत, इसके बारे में भी दिया हुआ है. व्हाट आर दे आर द मेनी टेक्स्ट आर देयर विच वर रिटन ऑन म्यूजिक. तो देख लेते हैं. संगीत मकरंद है. तो अ म्यूजिक स्कॉलर नरशाद हेड रिटन संगीत मकरंद. तो 19 वीणास आते हैं, उसके अंदर 101 रिदम है. संगीत रत्नाकर के बारे में देखें तो he lived in Daulatabad. He was very familiar Indian musician. पंडित विष्णु नारायण भाटखंडे, उसको संगीत रत्नाकर बोलते थे. द मोस्ट ऑथेंटिक बुक ऑफ म्यूजिक, संगीत रत्नाकर. संगीत रत्नाकर इज बिलीव्ड टू बी यूनिक इन अंडरस्टैंडिंग ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ म्यूजिक. संगीत परिचित. इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बुक ऑन म्यूजिक. पंडित अहोबाले, उन्होंने ये लिखी है इन 1665 में. नॉर्दर्न हिंदुस्तानी म्यूजिक इधर. सबकी जितने भी रागास है, जितने भी उसके अंदर म्यूज़िक है, तो उसकी अपनी अलग अलग आइडेंटिटी है, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक है, और 29 टाइप्स के ट्यून बताए गए हैं. अब अलाउद्दीन खिलजी का टाइम था. उस टाइम पे अमीर खुसरो था, फेमस था, टैलेंटेड पर्सन था इन द फील्ड ऑफ म्यूज़िक एंड पोएट्री. उसको टूटे ए हिंद यानी कि इंडिया का पैरट ऑफ इंडिया ऐसा नाम दिया था. भक्ति संगीत भी हुई. चैतन्य महाप्रभु, कबीर, तुलसीदास, मीराबाई, नरसिंह मेहता एक्सेट्रा वेर फेमस इन कंपोजिंग भक्ति संगीत, songs on भक्ति संगीत. स्वामी हरिदास, बैजू बावरा, तानसेन, द्विवेद गर्ल तानारीरी, these all are considered as rare jewels of the music of 15th century. Okay, then art of dance. नृत्य, ये संस्कृत वर्ड है नृत्य. ताल, लय,
इसका यूज़ होता है। इससे एस्थेटिक जॉय मिलता है, रियलाइजेशन होता है। शिवा इज द ओरिजिनेटर ऑफ डांस, और ये डांस को बोलते हैं लॉर्ड ऑफ डांस। शिवा इज देयरफॉर ऑल्सो सेड टू बी नटराज, इसको नटराज बोलते हैं इसकी वजह से। तो हमारे देश में कितनी वेराइटीज़ है? भरतनाट्यम है, कुचिपुड़ी है, कथक है, कथकली है, ओडिसी है, मणिपुरी है। तो भरतनाट्यम के बारे में, भरतनाट्यम है, इट इज़ said that it is believed that it is to be in the origin of Bharatanatyam is believed to be in Tanjore district of Tamil Nadu. There are 2 books on it, Natya Shastra by Bharat Muni and Abhinav Darpan by नंदिकेश्वर। उसके बाद भी गोपी कृष्ण, मृणालिनी साराबाई, actresses like Vaijanti Mala, Hema Malini, they are also considered to be the preservers of this heritage. Then comes Kuchipudi. This is the style of dance created in 15th century based on the description of women's beauty. Different poses, gestures performed by male and female dancers are woven in the foundation of this dance. It is of the famous in आंध्र प्रदेश, और उसके पंडित जो है उसका नाम है गुरु प्रहलाद शर्मा, राजा रेड्डी, शोभा नायडू एक्सेट्रा। उन्होंने इसको प्रिजर्व किया है, एंशिएंट ट्रेडिशन को। देन कम्स कथकली, जनरली केरला का है डांस। ड्रामास भी होते हैं, एपिक्स ऑफ रामायण एंड महाभारत के ऊपर बेस्ड है। मिक्स ड्रामा होता है संस्कृत में, मलयालम में। तो पब्लिक वो पहनते, डांस करने वाले क्या पहनते हैं? दे वियर ब्यूटीफुल प्लेटेड अटायर, और फेशियल एक्सप्रेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट। वी हैव टू रीड देयर फेशियल एक्सप्रेशन टू रिकग्नाइज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कैरेक्टर। और उसके अपने सर पे जो क्राउन पहनते हैं वो भी आर्टिस्टिक होता है। उसके फेशियल एक्सप्रेशन, पोजेस ऑफ हैंड्स, टू इंट्रोड्यूस द कैरेक्टर्स ऑफ त्रिलोक। तो इसका यूज़ है। केरला का पोएट है, उसका नाम है श्री वल्लाथोड़। कलामन्नदलम, कृष्ण प्रसाद, शिवरामन। So these are very worldwide famous poets. Then comes Kathak. The line Kathak kalli करे सो कथक कहावे, कथन कहे कथन करे, कथा करे सो कथक कहावे, यानी कि it narrates the life events and incidences of Lord Krishna. श्रृंगार भक्ति इसके अंदर जुड़ी हुई है। जनरली वैष्णव कम्युनिटी वाले इसका यूज़ करते थे, और वीमेन नेरो ट्राउज़र पहनती है, फ्रिल्ड अटायर फ्रॉक पहनती है, और डांस होता है। श्री बिरजू महाराज, सितारा देवी, कुमुदिनी लखिया, दीज आर द फेमस guru or persons of this art. Then comes Manipuri dance. Manipuri dance on every occasion of festival. This dance style is chiefly based on Ras Leela, Bal Leela. श्री कृष्ण मणिपुरी डांस तो 2 टाइप में डिवाइड किया, लस्य एंड तांडव। पेटीकोट पहनते हैं, इसको क्यूमिन बोलते हैं। नाम दिया हुआ है, गुरु जो है अमोबी सिंह, एटम बो सिंह, गुरु बिपिन सिंह, नैना जवेरी,
निर्माण मेहता, ड्रामेटिक आर्ट। ओडिसी भी है, ओडिसी का उड़िया। फिर ड्रामेटिक आर्ट की बात कर लेते हैं, गद्य शास्त्र की। भरत मुनि जो है वो फेमस थे ड्रामेटिक आर्ट के लिए। इट इज सेड दैट देर इज नो बुक, देर इज नो स्कल्पचर, देर इज नो नॉलेज, देर इज नो डीड विच इज लेकिंग इन ड्रामेटिक आर्ट। यानी कि उन्होंने देवसुर संगम संस्कृत में लिखा। ड्रामा जो है वो है कर्णभार, उर्भंग, दूत वाक्यम, ये सब महाभारत के ऊपर बेस्ड है। फिर अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मालविका अग्निमित्रम, दीज आर ऑल्सो कालिदास ने लिखे हुए हैं ड्रामा से। दे आर रिटन इन संस्कृत। जयशंकर सुंदरी का नाम भी सुना होगा आपने, वो भी फेमस है। तो ड्रामेटिक आर्ट ऑफ गुजराती के अमृत नायक, बाबूलाल नायक, दीना पाठक, जशवंत ठाकर, उपेंद्र त्रिवेदी, प्रवीण जोशी, दीपक घीवाला, these are the remarkable playwright. Then comes Bhavai. Script writers have said that Bhavai is emotion-oriented drama. It is a special dramatic art that started 700 years ago by असेत ठाकर। तो ये आर्ट के जरिए लोग को पब्लिक एजुकेशन दिया जाता है along with entertainment at the economical rate, promoting during Solanki era. They were playing trumpet. The music was playing on trumpet. Ramdev, Jhanda, Julan, Kajoda. These are the several characters. And generally Bhavai includes a protest against social vices. तो सोशल वाइसेस है उसको डिस्कार्ड करने के लिए जनरली भवाई दिखाई जाती थी, हैड बीन परफॉर्म्ड इन पब्लिक प्लेसेस। फिर गर्ल एजुकेशन के बारे में, फिर गर्ल चाइल्ड, सेव गर्ल चाइल्ड के बारे में। दीज आर द सेवरल टॉपिक्स विच दे वेर टेकिंग एंड देन परफॉर्मिंग भवाई। देन फोक डांसेस की बात है, फोक डांसेस में ट्राइबल डांस आ जाता है। गुजरात का ट्राइबल डांस गरबा वेरी फेमस। फेस्टिवल्स है, मैरिज है, फेयर्स है, तो सबके गुड गोडेसेस को के लिए डांस करना। Many songs are in regional language had been sung by the people. टिप्पणी डांस है। फिर जैसे कि यहाँ पर पीकॉक, स्क्विरल, स्पेरो के डांस है, जैसे माड़ीनो चालो, ठाकरो चालो, ये सब गाते थे लोग। दिस इज फेमस। गरबा, गर्भदीप बीच में अर्धन लैंप के बीच में उसको जला जाता है और डांसर्स उसके पॉट के अंदर रख के फिर अपने सर पे रख के सर्कल में गरबा परफॉर्म करना। ये नवरात्रि के फेस्टिवल में होता है। आसो सुद एकम से लेके आसो सुद नोम तक, एंड दसम को आधी एंड होता है। शरद पूनम तक कभी कभी कहीं पे गरबा करते हैं लोग, गुजरात में तो खास। आदि शक्ति गॉडेस जगदम्बा की आराधना करते हैं, उनके लिए दे परफॉर्म गरबा एंड सिंग गरबा in open ground encircling the Mandavi kept in the center with the strokes on hands and beats or drums they were doing. फिर रास की बात है, ये ट्राइबल डांसेस है, गरबा है। फिर रास की बात है तो रास इज ए डांस बाय परफॉर्म्ड इन ए सर्कल एलोंग विथ सिंगिंग। उसके साथ ही जैसे
गरबा करते हैं, तो उसमें तो यहाँ पर अलोंग विथ इट कृष्ण, लॉर्ड कृष्णा के बारे की स्टोरी की बात है, वो रासलीला करते थे टू डिवोटी। नरसिंह मेहता थे उसका डिवोटी। तो नवरात्रि की तरह ही ये जन्माष्टमी फेस्टिवल है, इट इज़ वेरी फेमस। दांडिया रास ये नाम है उसके दिए गए हैं। लोग चनिया चोली पहन के एम्ब्रॉयडर्ड ड्रेस दे वर वेयरिंग एंड केडिया धोती men were wearing and the perform ras are wearing and perform ras। दूसरे भी डांसेस गुजरात के हैं। गुंथन डांस, धमाल डांस ऑफ सिटीज, मेरियो डांस, पडा डांस, काली एंड मेर डांस। तो गोफ गुंथन डांस में क्या होता है कि एक पिलर के ऊपर या तो फिर रोप होती है, ताल लय और म्यूजिक के साथ मंडप में तो पिलर या ट्री के ऊपर, मंडप है या पिलर है ट्री, उसके ऊपर एक कपड़ा जो होता है उसका ऊपर का हिस्सा बांध के रखते हैं। फिर दे सर्कल राउंड एंड राउंड इन द स्पाइरल फॉर्म, दे मेक क्रीपर लाइक फॉर्मेशन गोइंग वन साइड एंड उसके बाद में फिर ओपनिंग दिस एंड अदर कमिंग आउटसाइड। तो ये रिपीट होता है। और कभी कभी they make an open the guthern plate। This style of dance is called Gof Guthern dance। फिर धमाल dance, it is also famous। They dance with a high and a low pitch intonation of ho ho sound, which echoes in the whole forest। They dance in a group imitating the voice of animals and birds। Primario dance, स्टेप वेल ऑफ बनासकाठा रीजन में जनरल इसके आसपास में दिखाई देता है। तोरण इज वोवन विद द टॉल ग्रास ऑफ रीट एंड झुंझड़ी and this dance is performed on drum beats and sweat tricks। तो उसको बोलते हैं मेरियो डांस। फिर पटा डांस आता है। पटार कम्युनिटी का डांस जो है, जनरली इट इज़ फाउंड इन सुरेंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट विथ लय ताल and using dandiya and manjira, they are dancing, generating scenes like sea waves or like a ship moving on the sea waves। Kolis of Saurashtra perform Koli dance। टर्बन पहनते, मद्रासियों हेड पे पहनते, एम्ब्रॉयडरी और मिरर के से टाइड विथ ग्रीन कलर्ड एम्ब्रॉयडरी बेल्ट, ऐसे टर्बन पहनते। दे वेर बेट ऑन देयर वेस्ट टू परफॉर्म डांस। Barwa tribe, generally they perform this type of dance। So okay, this all we had seen about our handicraft, our art, our artistry, painting, dancing of various fine arts। And this is our because of this all our heritage has become very rich and varied, and it creates a permanent impression of India on the all around the world। Okay, with this is the end of this chapter। Okay, bye।